We are starting an international trip to a beautiful Southeast Asian country called Vietnam. This country has bold modern architecture where the city's heartbeat is felt in the chaotic rhythm of traffic. Rickshaw pullers waving through the streets and honking scooters filling the air with life. Hanoi's train street where huge trains pass so close that they almost touch the houses and the little cafes along the track. A boat ride in Ninh Vinh feels so peaceful, floating through caves, rice fields and giant limestone cliffs. It's an out-of-the-world experience. High in the mountain, Bana Hills is like a fairy tale above the clouds, where you will find castle, French-style streets, sky train with cool mountain view, and of course the famous Golden Hand Bridge. As the sun dips, the magic of Hoi An, Lantern Town, comes alive. The river glows with colorful lanterns, streets sparkle in warm light, and here the time itself feels slower. This country has one of the world's most beautiful island called Phu Quoc Island. आई थिंक मेरा ये आइलैंड ट्रिप इनकम्प्लीट होता अगर मैं ये आइलैंड हॉपिंग ना करता तो. The Hon Thom cable car in Phu Quoc is the world's longest sea crossing cable car, offering stunning view and which is almost 8 kilometers long. Sunset Town in Phu Quoc feels like an European seaside town. The sunset here is magical, and when the night falls, the streets lights up so beautiful. Imagine taking a quiet boat ride through the narrow canals. It feels a bit like Venice, but with the unique charm of Vietnam. ये सब कुछ दिखाऊंगा इस वियतनाम ट्रैवल सीरीज पे as we start our journey from Guwahati to Vietnam via कोलकाता. बस एक ही रिक्वेस्ट है, काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए so that आप इस वियतनाम सीरीज को एंजॉय कर पाओ. या तो हम लोग पहुंच चुके हैं हनोई एंड फ्लाइट हम लोग एग्जैक्टली 2 बजे लैंड किया. वियतनाम पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, सो ठीक है, अच्छा है. थोड़ा सा यूरोपियन फीलिंग लग रहा है क्योंकि इसी टाइम पे हम लोगों ने लास्ट ईयर जॉर्जिया लैंड किया था. वीज़ा प्रोसेस आने के लिए बहुत इजी है वियतनाम में. आप घर पे बैठे बैठे ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हो. विद इन 3 days आपको वीज़ा मेल पे आ जाएगा. वीज़ा फीस 2217 rupees. And the name of this hotel is the Embassy Hotel Hanoi, and the location is in Old Quarter. So our room is having 3 beds. Including breakfast. Hey, good morning friends, and today we are at Hanoi. So फिलहाल हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अपना इस होटल पे. होटल का नाम है द एम्बेसी होटल एंड इट्स इन वेरी प्राइम लोकेशन. तो कल रात हम लोग करीब 4:30 बजे के करीब पहुंचा, मतलब इमिग्रेशन सब कुछ ख़त्म होने के बाद तो सो गए थे. तो हम लोग 8:30 फटाफट गेटअप होकर अभी ब्रेकफास्ट ख़त्म करके फ़िलहाल हम लोग अभी हानोई ट्रिप में जाएंगे, वॉकिंग ट्रिप. एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसका नाम है हनोई फ्री प्राइवेट टूर गाइड. देयर आर स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फ्री गाइड प्रोवाइड करते हैं. एंड फ्री गाइड का मतलब ये है कि अगर आप बुक करेंगे, आप ट्रिप एडवाइज़र के थ्रू बुक कर सकते हो इनको, या आप इनका वेबसाइट में जाके भी कर सकते हो. तो जहाँ पे आपको फ्री गाइड एक प्रोवाइड कर देंगे जिसको नॉलेज है इस सिटी के बारे में, हिस्ट्री जानना है, तो आपको आपके साथ रह के दिखाएंगे 4-5 घंटा, जितना भी टाइम आपको चाहिए. तो फ्री इन द सेंस आपको अपफ्रंट इंडियन करेंसी में अराउंड 450 पे करना पड़ेगा. एंड उनमें से अराउंड 80 रुपीज़ के आसपास जो ट्रिप एडवाइज़र रख लेता है, और बाकी अमाउंट इन लोगों को ये लोग ट्रांसफ़र कर देता है. तो ये अगर आप इन लोगों को मांगेंगे कि आप मुझे वो अमाउंट भी ट्रांसफ़र कर दो, ये आपको इमीडिएट ट्रांसफ़र कर देगा, वो आपका पेपाल अकाउंट में डाल देगा. लेकिन आप चाहे तो इनको ये डोनेट भी कर सकते हो. तो मैंने बोला मुझे ट्रांसफ़र नहीं चाहिए अमाउंट, मैं आप लोगों का ऑर्गेनाइजेशन पे डोनेट कर देता हूँ, बिकॉज दे आर डूइंग अ गुड जॉब, स्टूडेंट्स है. तो इनका डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाल देता हूँ, आप यहाँ पे जाके आपका फ्री गाइड बुक कर सकते हो. So nice to meet you. My name is Sean. My real Vietnamese name is Son, but people like to call me Sean. Sean. Yeah. Last year, 22 years old. This year, 20 years old. I just graduated and I study tourism. At the moment, I belong to Hanoi Freeway Tour Guide Club. So we are still doing it as a volunteer, as a way for us to practicing and learning to become a professional one. Today is the 110th tour since I started tour guiding.
for yours. Yeah. 110. 110 tour. So फिलहाल हम लोग ग्रैब टैक्सी ले चुके हैं एंड नाउ वी आर गोइंग टू वाइट हाउस टेम्पल ऑफ हनोई. तो आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेसेस हम लोग एक्सप्लोर करेंगे एंड देन ट्रेन स्ट्रीट. प्रीवियस सीरीज़ आपने अगर जॉर्जिया का देखा होगा तो वहाँ पे भी मैंने एक गाइड लिया था. बिकॉज क्या होता है ना, अगर आप कोई नया सिटीज़ में जाते हो, नया कंट्रीज़ में जाते हो, तो आपको पता नहीं होता है क्या है हिस्ट्रीज. तो इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल एक गाइड ले लीजिए लोकल. तो मेरा फर्स्ट चॉइस वही होता है. सिंस मैं सारे ट्रिप मैं खुद बुक करता हूँ तो मेरा कोई एजेंसी होता नहीं. एजेंसी से बुक करने से क्या होता है, वो लोग आपको एक गाइड प्रोवाइड कर देते हैं. बट या फॉर मी आई प्लान माई ट्रिप एंटायरली अलोन. तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि एक गाइड लोकल ले लूँ सो दैट मुझे हिस्ट्री के बारे में जानूँ, या एटलीस्ट आपको ये पता लग जाती कहाँ कहाँ विजिट करने, कौन सा फेमस प्लेसेस है. प्लेसेस तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको गाइड बता देंगे आप ये सब छोड़ के ये सब जगह जाइए. तो सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑल दोज इम्पोर्टेंट प्लेसेस. या तो फिलहाल हम लोग ग्रैब टैक्सी से बुक कर चुके हैं. मेरा कार्ड लिंक है. एक बेनिफिट ये है कि कार्ड लिंक करने से, जैसे मेरे पास अभी वियतनाम का करेंसी है नहीं, बट स्टिल मैं कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकता हूँ, ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा. This is the White Horse Temple. The 5 words there means the most holiest and ancient White Horse Temple. White House Temple, Yeah. holiest. Yeah. Yes. We have 4 of them. 4 temple for 4 direction of the universe. So this one here is on the east. Okay. Yeah, that one on the north, that one on the west, and that one on the south. This is east. Yeah, this is east. There's not only one but 2 gods in this temple here. 2 Not gods. Not only one but 2 gods. 2, oh. Yeah. But the funny thing is, they are the same god. Okay. Yeah. So the white horse is the transformation of Long Day God, which is further inside. We cannot see from here. You have to go further inside Okay. there. So Long Day God is a powerful and very sacred ancient god in the past. When this temple here has a history of more than 1,000 years. Long means dragon, and De means the belly. Okay. The belly of the dragon. Ah. Long time ago, our city is like inside the rivers. So that's why the French governor, when the governor is in Vietnam during the colonial time, he named this place Hanoi. Ha means river, and No means inside. So this is a land inside the rivers. Hanoi. Yeah. So this temple here is close to the river. Yeah. And then after time, the modernization, people built more house. The river started shrinking down. It's not as big as before. Yeah. So this temple here is built. People here is built is to worship Long Day God as a powerful God to protect the people against all the flood, typhoon, the weather bring to Vietnam. यहाँ पे कोई ऐसा कोई मूर्ति है नहीं भगवान का. सो एक वाइट हॉर्स एक बीच में रखा हुआ है. वाइट हाउस नहीं है वो, वाइट हॉर्स. तो इसको ये लोग मानते हैं एंड ये लोग ये समझते हैं कि ये वियतनाम को प्रोटेक्ट करता है. So this we call Dio, the phoenix. So the phoenix is one of the 4 holy creature. Yeah, along with the turtles. So the crane, the phoenix is served as is symbolize sincerity, honesty, and the resurrection. Yeah, and the turtles symbolize longevity and wisdom because it can live longer than a person. In our culture, 74% is atheist, 40% is Buddhism, 11% is Catholic, Christian, and the others as Hinduism, yes, Protestant, Judaism. This is very interesting. Almost 74% people कोई
रिलीजन फॉलो नहीं करता है. इफ़ यू डोंट फॉलो एनी रिलीजन विच मीन्स नो फाइट. अब सबको मानते हो, मतलब कोई एक रिलीजन फॉलो नहीं करते. यू एक्चुअली रेस्पेक्ट एवरीबडी देन. ओके, सो अभी फ़िलहाल हम लोग ले थाई, तो ये बेसिकली इनका किंग का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया हुआ, जो एम्परर था वियतनाम का. तो पीछे जो है ना इनका स्टैचू बना हुआ है. द किंग स्टैचू इज़ फेसिंग दिस लेक कॉल्ड सॉल्ट लेक. सो ये लेक, और ये एरिया बहुत सुंदर है, बिल्कुल क्लीन, शांत, कोई ट्रैफिक है नहीं. तो ये एरिया पे आप आके बैठ के टाइम स्पेंड कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा. सो आप सॉल्ट लेक या ले थाई तो करके सर्च करके भी आ सकते हो ग्रैब टैक्सी में. अभी और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है. अगर आप चाहते हो तो हनोई में वन डे क्या कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो. सो दिस इज़ वियतनामीज ड्रेस, राइट? द लेडीज़ आर वेयरिंग सेम एज इंडिया. मुझे एक यूनिक सा चीज़ दिखा है यहाँ पे. ये जो बिल्डिंग है ना हनोई का गवर्नमेंट बिल्डिंग है, एंड इट्स दी न्यूज़पेपर जहाँ से प्रोडक्शन होता है. ये हनोई का सबसे फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रोडक्शन यहाँ से हुआ था, और आप पीछे देख सकते हो. सो दिस इज़ दी न्यूज़पेपर. And news of Ukraine on here. Yeah. It's daily news. Daily news, yes. So this is the same newspaper building? No. It's a other building. Okay. This is also a newspaper. No, this is the headquarters of the district post office. Okay. Back then, it's the headquarters of French post office. Okay. So हम लोग अभी फ़िलहाल मनी एक्सचेंज करेंगे. एंड वियतनाम इज़ मुझे थोड़ा बहुत इंडिया जैसा फीलिंग भी आ रहा है. यहाँ पे स्कूटी बहुत चलता है, एंड ट्रैफिक लाइक क्रेज़ी. सो जैसे हम लोग रोड क्रॉस करते हैं, तो मुझे जो मेरा गाइड है बोल रहा था यार ध्यान से क्रॉस कीजिएगा. तो मैंने इनको बताया कि हम लोग डेली ऐसे ही फेस करते थे, कोई अपने लिए तो चैलेंज है नहीं बिल्कुल. या तो अच्छा लग रहा है. सो अभी फ़िलहाल हम लोग गोल्ड शॉप पे जा रहे हैं. सो गोल्ड शॉप में यहाँ पे एक कन्वर्जन रेट अच्छा मिलता है इट सीम्स. सो तो कुछ USD से VND वियतनामी डोंग पे कन्वर्ट कर लेते, बिकॉज अपने पास बिल्कुल भी लोकल करेंसी है नहीं. High rate. Okay. Better rate we get. Better rate. Okay. कुछ. You have $100 and you look rate. Yeah, I have $100. Yeah. This. तो ये है गोल्ड शॉप. सो हम लोगों ने करेंसी एक्सचेंज करवा लिया. 400 USD को वियतनामी डोंग पे कन्वर्ट किया. सो मैं अभी फ़िलहाल करोड़पति हूँ. सो मुझे जो करेंसी मिला $400 US के अगेंस्ट में 1,05,00,000. अगर मैं $400 US का बात करूँ, इंडियन करेंसी में करीब 34,000 रुपीज़ के आसपास होगा. बट हेयर इट इज़ 1,05,00,000. सो यू कैन इमेजिन. बट मैंने ऑनलाइन देखा रेट्स आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन द गोल्ड शॉप. That is the Saint Joseph Cathedral. It's built in 1886. 139 years old. Yeah. When we dive inside the history, we will know that it was built on the foundation of a pagoda. Bao Tian Pagoda. This was the foundation of pagoda, yeah? Yeah, it was a pagoda before. And then when French came, they demolished the pagoda. The pagoda became a market. And then the priests, they insist the governor to build the cathedral. Yeah. So this cathedral here entirely is built by Vietnamese material, except the clock. Yeah, the clock is bring from France. Yeah, all the way from France here. It has five bell connect to the clock. So every 50 minutes, it will ring a bell. First quarter, 1 bell. Second quarter, 2 bells. Third quarter, 3 bells. And the middle one, it will be a long bell. वेल सो मैंने सिम कार्ड ले लिया. एंड मैंने कैथीड्रल के पास ये दुकान पे आप आ जाइए. आपको यू विल गेट ई सिम एज वेल एज फिजिकल सिम कार्ड.
एंड रेट भी रिजनेबल है. 15 डेज़ का वैलिडिटी, हम लोग 11 डेज स्टे करेंगे तो गुड एनफ. एंड एवरी डे देयर इज अ 5 GB डेटा यू विल गेट, सो विच इज़ गुड एनफ. मैंने 2 सिम कार्ड करीब 1500 रुपये मिले, उसमें एक ई सिम है. ई सिम का प्राइस ज़्यादा होता है यहाँ पे. एंड ऑल आर मोस्टली अनलिमिटेड डेटा 15 डेज़ का. 5 GB इन ए डे, आई थिंक उसके बाद थ्रॉटल्ड है. बट 5 GB से क्या करोगे आप? घूमने आए हो तो 5 GB डेटा थोड़ी ना चाहिए होता है इन ए डे. सो या सो दिस इज़ ऑल अबाउट मनी एक्सचेंज एंड सिम कार्ड. और हम अभी जा रहे हैं सम एक फ्रेंच प्रिजन, कुछ एक लोकेशन है, बहुत फेमस एरिया है. वहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद ट्रेन स्ट्रीट जाएंगे. इन बिटवीन हो सके तो हम लोग लंच भी कर लेंगे. Change 50,000. So per ticket adult 16 years below free है entry, and बाकी adult per ticket cost is 50,000 dong. So here you see the word on the entrance. It means My Son Central. Okay. Yeah, My Son means a big house, also means prison. Central means in the center. So this is a prison in the center of the city. Yeah. Ghi chú vào. Về bao. Bạn là đi khách nhé. So it's a check-in ritual before we enter. What does it mean, Samsung? So dong, this is what the prisoners call themselves in the prison. Dong means dong in đồng chí means comrade. Okay. Comrade. 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 Like Soviet Union comrade. Yeah. This Song. is the red flag. Yes, comrade. Yeah. Song means song sat is metabar. So we are the comrade in the same cells. So this is about the life of the prisoners in the cells. So they do not get quality food for their meals. But the rules says that they can have like good food. But the guard, they made a hidden contract with the contractors. They take all the good food away and left the bad, outdated, spoiled food behind for the prisoners. A quiz. What is MC stand for? Remember what you have experienced, what you have seen. MC. Maison Saint-Rémy. Correct. 100 point for you. They have clothes for winter and for summer, but only one per summer. Yeah, and a woolen blanket for them during winters. Yeah. Death prisoners, they will be executed. So this is called the Hanoi poison. Participate in 27 June 1908. So there's a group of Vietnamese working in the French military. Yeah, and đội bình, bếp hiên, đội nhân. Đội means a manager for a group of soldiers. They work for the French, but they are Vietnamese. Bếp hiên, bếp means chef. Hiên is a name. He's the one who makes the poison into the French food. It's called datura. Datura. Yeah, you have datura? Yeah, yes, we mix that. So he tried to mix the poison with the food. So about 203 French prisoners, French soldiers got paralyzed. This is the toilet. So it's put inside, like in the middle of the prison. Yeah, and it's stinky. So now, imagine the bucket underneath is full of human waste, and when you take a shit, it's dropped down, it's splashed, and then the dirty things comes out and flow on the floor. Imagine the floor is full of dirty things, and many disease is flourish here. So many prisoners, they got diarrhea, they got dysentery because the bad condition of living inside the cells. At the first design, is only to house 600 prisoners, but then in 1930 there are more than 800 prisoners, Vietnamese prisoners, mostly political prisoners, are captured in here. So many of them had to lie on others' bodies, lie on the floors.
lie on the toilet to sleep. The Vietnamese prisoners, they try to scratch the wooden foundation and make it loosen the shackles. But the French, they noticed that, so they try to raise shackles higher. वेल सो हम लोग अभी वो प्रिजन देखे, आपने देखा थोड़ा सा दर्दनाक और ऐसे भी टॉर्चर किया जाता है, देख के बहुत बुरा लग रहा था. सो नाउ इट्स 2:46. आई थिंक 3:30 के आसपास कोई ट्रेन स्ट्रीट से ट्रेन जाएगी, तो हम लोग अभी ट्रेन स्ट्रीट जाएंगे. सो 15 मिनट बाकी है ट्रेन के लिए एंड यह है द ट्रेन स्ट्रीट. सो हम लोगों ने ऑलरेडी एक कैफ़े ऑलरेडी बुक करके रखा है. सो वी आर सर्चिंग द कैफ़े राइट नाउ. इट्स टू क्राउडेड. अब सोचो यहाँ से ट्रेन जाती होगी. सो इट्स वेरी फेमस ट्रेन स्ट्रीट राइट नाउ, बिट कैओटिक. Okay. Coming this way, right? Yeah. This तरफ से Yeah. I don't even know how. तो ट्रेन आने से पहले ना एक बेल रिंग होता है. तो वो बेल रिंग हुआ, इसका मतलब अभी ट्रेन आएगी. एंड यहाँ पे ना जो जहाँ पे टेबल लगा हुआ है उसके बियॉन्ड जा नहीं सकता है. दैट्स द रेड लाइट, बिकॉज इट सिम्स द ट्रेन एक्चुअली बहुत क्लोज से मूव होती है यहाँ पे. बहुत क्लोज से मूव हो रही है, बहुत ज़्यादा क्लोज. मतलब बिल्कुल टेबल के पास से. Long train, very long train. Okay, long day full of energy spent, and now it's time to dive into this delicious bowl of chicken soup noodles. हम लोग थोड़ा फंस गए थे बारिश में, बहुत ज़्यादा बारिश हो गए थे इवनिंग पे एंड हम सारे भीग चुके हैं. सो फिलहाल शॉन एंड क्वीन दोनों को गुड बाय करेंगे अभी. एंड दे हैव डन ए गुड जॉब. एंड आप चाहे तो इनका फ्री हनोई फ्री प्राइवेट टूर गाइड सर्विस भी आप ले सकते हो. एंड इनसे आप चाहे तो ऑनलाइन बुकिंग करके आप इनके थ्रू घूम सकते हो. सो या, सो थैंक यू शॉन एंड डू वेल एंड कीप इन टच. कम टू इंडिया समडे. या Yeah, sure. Yeah. Bye. See you. Yeah. Well, after having a wonderful day in Hanoi, now it's time to explore the beautiful evening of Hanoi by walking. इस लेक के आसपास में ना जो स्ट्रक्चर्स है बहुत सुंदर लग रहा है. थोड़ा सा यूरोपियन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स आप पीछे देख सकते हो. इवनिंग ज़रूर आप आइए. होइन कियाम लेक का आसपास एरिया को आप घूम के इसको थोड़ा सा चल के देखिए. शूटिंग चल रहा है.
कॉपीराइट इशू, मैं ओरिजिनल गाना को ऑल्टर करके एक नया ऑडियो यहाँ पे इंसर्ट किया एंड द लेडीज लोग आर डांसिंग इन ए वेरी फेमस इंग्लिश सॉन्ग। या सो वाइब बहुत अच्छा है। अगर आप ये स्ट्रीट पे वॉक करोगे ना, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगा ज़रूर। So vanilla chocolate 3. So this is 45,000. Yeah. यार ये 1000 मतलब एक आइसक्रीम हम लोग 50,000 का 45,000 का आइसक्रीम खरीदा। Thank you so much. थैंक यू। या सो बेसिकली 3 आइसक्रीम हम लोग 45,000 से परचेज़ किया। सो 45,000 मतलब पर आइसक्रीम इक्वल टू 15,000। सो 15,000 डोंग मतलब करीब 50 रुपीज़ के आसपास होगा। हाँ, तो तीनों मिला के 150 रुपीज़ है, तो ठीक है। सो दिस इज़ द नाइट मार्केट। ये मार्केट नियर बाई टू आवर होटल। तो वॉकिंग करके ये लेक के आसपास से आप चल के ये नाइट मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। नाइट मार्केट इन द सेंस अभी 11 बज रहा है, तो मार्केट ओपन है। यहाँ पे डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टाइम पे ये मार्केट्स खुला रहता है। जैसे ये सारे जो टी शर्ट्स वगैरह है 100K विच मीन्स अराउंड 3 USD के आसपास में ये सारे टी शर्ट्स मिल रहे हैं, सोविनियर आइटम मिल रहा है, तो आप देख सकते हो। ये मार्केट मतलब ठीक है। बाहर में आप शॉपिंग करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट मैं ऑलवेज जो मुझे मिला है, मैंने बहुत सारा कंट्री विजिट किया, तो इंडिया इज़ द चीपेस्ट। अपना भारत में सबसे सस्ता सामान मिलता है। बट एक चीज़ है, आप बाहर में आके आप कुछ शॉपिंग करके लेके जाना चाहते हो घर में, आपका फैमिली फ्रेंड्स के लिए, तो उसके लिए ठीक है। सो ये जो कार्गो पैंट्स है 200K विच मीन्स करीब 650 रुपीज़ में मिल रहा है, तो ये रिजनेबल है। मतलब पैंट का क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। सो हम लोग 2 नॉर्थ फेस फर्स्ट कॉपी, एक्चुअल नॉर्थ फेस का तो बहुत प्राइस है। सो ये 200, दोनों 200 मतलब 400 VND विच इज़ अराउंड 650 रुपीज़ पर पीस। तो बिल्कुल अंधेरा है।